ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਈ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ BSF ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ BSF ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BSF ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰਾ ਬੰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੜਬੜੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 3 ਪੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 3.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSF ਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਹ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਚਾਹੇ ਉਹ BSF ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ SOPs ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जैसा SSP फिरोजपुर साहब ने पूरा जानकारी आपको दी है, मैं जो BSF का रोल बॉर्डर पे है, आपको जैसा मालूम है कि 24/7 हम बॉर्डर पे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी के लिए हमारे लोग अपने नाइट सर्विलांस इक्विपमेंट का पूरा इस्तेमाल करते हुए इलाके की पूरी रात चौबंद कर रहे हैं। हमारे जो ट्रुप्स थे उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है ड्रोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उस ट्रेनिंग का लाभ लेते हुए जो रात में
ड्यूटी पे उपस्थित हमारे ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स और ट्रुप्स थे, उनके द्वारा ये आभास हुआ 28 और 29 की रात में लगभग 23:45 पे कोई उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था उसका असेसमेंट करते हुए उन्हें ये जानकारी रही कि इसमें ड्रोन है की एक्टिविटी है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, काफ़ी ऊपर था, जो नाइट सर्विलांस से हम देखते हैं उससे भी ऊपर था, तो ये माना जा रहा है कि वो 400 या 500 मीटर की हाइट पे था। जैसे ही ये डिटेक्शन हुआ, विद इन नो सेकेंड जो हमारे ट्रुप थे उन्होंने पैरा बम फायर किया, LMG से फायर किया उस टारगेट पे, जिसका रिएक्शन ये हुआ कि जो हैंडलर जो जहाँ पे भी होंगे आसपास वो डिसओरिएंट हुए और उन्होंने उसको वापस मोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ड्रोन जो कि पहले से ही निर्धारित जगह पे जाने का मॉड्यूल उसका तय कर देते हैं उसमें, और वो वहाँ से कंट्रोल होते हैं। गड़बड़ी में जब फायरिंग हुई है तो वो डिसओरिएंट हुए हैं और उन्होंने अपना पाथ बदला है और उस पाथ में वो कंसाइनमेंट जो है अपनी जगह से जहाँ पे उनको जाना था उसके पहले ही वो ड्रॉप करके वापस आए। वापस मुड़ते समय भी जो है उस पर फायरिंग की गई, आवाज़ के निर्धारण में लगभग 90 सेकंड के बाद ही वो वापस हो गया था। उस पर भी पैरा बम और जो है साथ से फायरिंग की गई। कुल 2 पैरा बम फायर किए गए और 12 राउंड उसके ऊपर फायर किए गए, और उसके बाद तुरंत जो है मेरे द्वारा SSP साहब को तुरंत उसकी सूचना उसी मौके से ही दी गई और दोनों ही टीम BSF की QRT प्लस पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की QRT मौके पे पहुंच गई, SSP मंगलौर भी मौके पे पहुंच गए। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और जो भी उसका पाथ था उसके हिसाब को आइडेंटिफाई करते हुए अलग अलग जगह पिकेट्स लगा दी गई थी। और फर्स्ट लाइट में क्योंकि रात था, पानी भरा हुआ था खेतों में, ये डिसाइड हुआ था कि फर्स्ट लाइट में हम पूरी तरह से इस पूरे इलाके का निरीक्षण करेंगे और उसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये सर्च लगातार चलता रहा जब तक कि इसकी जो है शिनाख्त और इसकी प्राप्ति नहीं हुई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बॉर्डर पिलर नंबर 198/4 और 198/5 के बीच में हमारे कार्मिक सीमा पे गश्ती कर रहे थे हमारे अधिकारी और जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। लगभग 21:45 आवर्स पे 2345 रात्रि 28 तारीख को उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड सोल्जर्स हैं जिनको डिटेक्शन के बारे में पहले से ही पता था कि इस तरह से आवाज़ जो है वो ड्रोन की हो सकती है, वो उसका असेसमेंट करते हुए उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में जो भी उनके अधिकारी थे उस पर फायर किया, इनिशियल फायर किया। जब वो दिखाई नहीं पड़ा तो पैरा बम जो हमारे पास है उससे फायर किया गया ताकि इलाके को रोशन किया जा सके और उसके बाद उस पर लगातार फायरिंग की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ड्रोन जो है वो ओरिएंट हुआ और जो भी हैंडल फायरिंग जो भी पास में होंगे उसने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की और वो वापस सीमा पे वापस जाते समय भी उसके ऊपर ड्रोन पे फायर किया गया। तुरंत ही उसकी सूचना जैसे ही ये घटना हुई मेरे द्वारा SSP साहब को रात में ही दे दी गई और तुरंत विद इन नो टाइम जो भी QRT अगल बगल की पेट्रोलिंग उस पूरे इलाके को घेराबंद कर दिया गया। रात्रि में क्योंकि चारों तरफ पानी का इलाका हुआ है, खेती का इलाका था, जगह जगह पिकेट्स लगा दी गई पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। SHO मंगलौर मौके पे मौजूद थे, SP ऑपरेशंस मौके पे मौजूद थे और ये घटना फर्स्ट लाइट पे ये डिसाइड हुआ कि पूरे इलाके की गहन तलाशी की जाएगी। उस तलाशी के दौरान में डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, हमारे द्वारा ड्रोन से भी इलाके की रैकी कराई गई। साथ ही साथ समय समय पे हम फार्मर्स की भी मीटिंग लेते हैं, उनको भी इस बारे में अप्राइज करते हैं कि अगर किसी ने सुना हो देखा हो तो उनके द्वारा भी सूचना एकत्र की जाए। ये सारी चीज़ें की गई और लगातार पार्टी बना के इलाके की सर्च की गई। जैसा मैंने बताया कि वो इलाका अप्रॉक्स 10 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था जिसको हमने टारगेट एरिया में लिया था और क्योंकि उसका मूवमेंट लगभग 90 सेकंड तक ही था तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि ये लगभग 1 किलोमीटर के इलाके के अंदर में होना चाहिए और उसी को टारगेट कर के द्वारा और BSF एज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। लगातार इसकी ट्रेनिंग अधिकारियों के द्वारा बाहर की एजेंसी जो DRDO हैं या एजेंसीज हैं उनके द्वारा कराई जा रही है। कई जगह हमें नए इक्विपमेंट मिले हुए हैं। हमारे पास जो भी ड्रोन दिए गए हैं सर्विलांस पर्पज़ के लिए, आगे आने वाले समय में ड्रोन के जैमर्स
और डिटेक्शन गन्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ प्लान्ड है और इसको बहुत ही जल्दी इस इलाके में कार्यान्वित कर दी जाएगी। तो इसके बारे में सर आपने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी बात की है? यस, फायरिंग होने के बाद भी काउंटर पार्ट की तरफ से भी हरकत बढ़ी है। सवेरे फर्स्ट लाइट में सबसे पहले हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्ड के रूप में उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग, जिसमें उनको त्वरित सूचना दी गई ताकि वो भी अपने इलाके की छानबीन करके और सीमा पे अगर कोई उस साइड में भी है उनकी पकड़ कर सकें। और साथ ही साथ स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है हमारी तरफ से लॉन्च कराया गया ताकि अगर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी तो रिलेशन डेफिनेटली जो है वो और एक्टिव रखने पड़ेंगे। तो इस बारे में उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो और प्रोएक्टिव होकर अपने इलाके में सुरक्षा और तलाशी अभियान चलाएंगे।